Are you able to see the slides? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay, okay. So in the last class, I was talking about different types of. Today, I will try to complete this topic. And in the last class, I was talking about different types of portfolio, where I talked about assessment portfolio, showcase portfolio, and developmental portfolio. Today, and then I told you also that assessment portfolio is the what do you say, the most important one or most technical one. If someone is saying that I am using portfolio in my school or in my college for assessment, that means he is using assessment portfolio. The simplest one is to implement is the showcase portfolio, because there the maximum tasks are being done by the students, and the process portfolio, there the task of the teacher and students both are there. But in this evaluation portfolio, the task of the teacher, he has got the primary role, because he has to keep everything in the authenticate way. Everything should be appropriate also. So that I discussed earlier in the previous class. Till some are coming. So there I discussed about this steps of this one assessment portfolio. Today again I will discuss it in some other way, and just I try to simplify that, because that is the most important one. So just you try to see, suppose someone wants to implement portfolio assessment in his school or in the college, then what are the different stages? First stage is identify teaching goals to assess through portfolio. First, you have to identify the objectives. The objectives of the portfolio means their portfolio. After that, finally, whenever you complete that particular task, what objectives you are going to achieve through that portfolio? Are you going to measure that the student has understood that particular thing? Are you going to measure that the student has developed the skills of doing a particular thing? So what is the objective behind developing that portfolio, or developing that assessment portfolio? Organizing portfolio assessment is to establish the teaching goals. Whatever teaching goals you have planned and you have implemented through your teaching, you have to see that if it has been achieved or not. And that can be done using portfolio. To be clear about the teacher hopes to achieve in teaching. So whatever teacher wants to achieve in his teaching, he has to measure it through the portfolio, that if he has become successful or not. Guide the selection and assessment of the students is also used for assessing the students. So first stage is to identify the goals, or you can say the objective of why you are going to use that portfolio, or what is the purpose behind. Second one, introducing the idea of portfolio assessment to your class. I told you that whatever authentic assessments are there, they are not in the hidden way or indirect way. Everything is transparent there from the very beginning, from the very first class. If you are trying to think about that you are going to use portfolio as an assessment tool, you have to give that idea to the students को बताना पड़ेगा कि ठीक है, हम आपका असेसमेंट कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू यूज एन असेसमेंट पोर्टफोलियो, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स. आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए कि आपका क्या क्या चीज को मेजर किया जाएगा, क्या क्या चीज को असेस किया जाएगा.
So the students should be aware about the fact what aspects are going to be assessed. Introduce the concept to the class, explaining the meaning of the word portfolio. आप उनको बताइए portfolio क्या है, उसमें हम क्या करने वाले हैं, किन किन aspects का assessment किया जाएगा. The portfolio assessment will assess the learners in a much fairer way than the traditional testing method. Fairer way है, मैंने बोला transparent way है. Everything is quite clear. कि आप क्या कर रहे हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है और आपने क्या किया है. सामने 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 है, दोनों को कंपेयर करना है और आपको इवेलुएट करना है, आपको मार्क्स देना है, ग्रेड देना है. Then stage 3 is specification of portfolio content. Then you try to specify the students, because you have to take the help of the student. Student has to develop his portfolio. तो ये पोर्टफोलियो में वो क्या क्या रखेंगे, क्या क्या कंटेंट पार्ट उसमें रहेगा, वो आप उसको बताने की कोशिश करेंगे. Then first one is specify how much to be included in the portfolio, both core and options. It is important to include options as these enable self-expression and independence. तो ये आपको ऑप्शंस भी देने की बात हो सकती है. मान लीजिए कि आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आप अपना जो ये टास्क करेंगे उसका एक ऑडियो स्क्रिप्ट आप बनाइए कि आपने उस काम को कैसे किया और उसको आप अपलोड कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो पुट वन वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन. मान लीजिए कि आप एक वीडियो भी, आपने वो टास्क कैसे कर रहे हैं उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिखाना है. यू कैन पुट दैट वीडियो रिकॉर्डिंग, और इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो गिव इट इन रिटन फॉर्म. सो जो भी आप करेंगे उसको आप क्या करेंगे कि उसको ऑप्शंस देंगे. स्टूडेंट्स को ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए कि वो डिफरेंट फॉर्म में अपना एक्सप्रेशन कर सकें, अपना पोर्टफोलियो बना सके. पोर्टफोलियो एंट्रीज कैन टेक मेनी फॉर्म, रिटेन, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डेड, आइटम्स, आर्टिफैक्ट्स, ड्राइंग, मॉडल, एक्सेट्रा. सो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी so much discussions I have done on this particular thing, that in the portfolio what things may be there. In stage 4, giving clear and detailed guidelines for portfolio presentation. Afterwards, once you have given them the idea that you have to develop your portfolio, why it is going to be used, what things you have to put in your portfolio, क्या क्या आपको रखना है, तो आप उसके बाद उनको ये भी बता सकते हैं कि आप अपना जब पोर्टफोलियो, क्योंकि उनका इवैल्यूएशन होना है, ऑडियो बंद कीजिए किसका. All of you close down your audio. So आप जो शोकेस करने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, then you give them the idea that if you are going to present your portfolio, what thing you have to do, क्या आपको करना है, क्या आपको स्पेसिफिक चीज़ों को यूज़ करना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है उसको बताना है, किस तरह से उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लाना है. From the very first day, I told you that teacher has to guide the students to develop the portfolio. Again, when they are going to present, उसको भी आप guide कर सकते हैं. Present as many evidence of learning as the students left on their own. ठीक है, जितना ज़्यादा आप एविडेंस दे सकते हैं. आप बोल रहे हैं कि हम घर में सबका हेल्प करते हैं, तो आपके पास जितना सारा एविडेंसेस अवेलेबल है वो सारा उसमें पुट करने की कोशिश करिए. एक्सप्लेन द नीड फॉर क्लियर एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, डेटेड ड्राफ्ट्स, सब चीज जो भी रिकॉर्ड हो उसका अच्छा से नेमिंग हो, लेबलिंग हो, टाइम, डेट, रेफरेंस, सारा कुछ उसमें मेंशन हो. ये नहीं कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल लगा दिए, आप उसमें लिखे नहीं है कि हम किस न्यूज़पेपर का है, किस डेट का है, तो वो मेंशन भी उसके साथ होना चाहिए. अटैच्ड रिफ्लेक्शंस ऑलवेज शुड बी देयर. कोई भी काम तभी इफेक्टिव माना जाएगा इफ यू हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दैट वन. आपका नाम न्यूज़पेपर में आया है तो आपको कैसा लगा, क्या आपने फील किया, वो आप लिखिए. दैट वन शुड बी देयर. दैट वन विल अट्रैक्ट द पर्टिकुलर ऑडियंस. जो ऑडियंस आपका पोर्टफोलियो देखेगा उसको वो ही अट्रैक्ट करेगा. जस्ट see that newspaper article is same, but if you ask for reflection for different students, they will write differently. वो सब अलग अलग चीज लिखेंगे. So once if they are writing differently, seeing that reflection, you can evaluate that particular student. नहीं कि वो न्यूज़पेपर आर्टिकल से आप उसका इवेलुएट करेंगे, क्योंकि वो तो कॉमन है.
देन स्टेज 5 फॉर्मिंग की स्कूल ऑफिशियल पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। आप जो भी जिसको वो प्रेजेंटेशन करने वाला है, सपोज यू वांट टू शो दैट पोर्टफोलियो टू द टीचर, टू द पेरेंट्स या कम्युनिटी मेंबर्स, you have to inform them. Make sure that the school principal is aware of your new assessment procedures. स्कूल के प्रिंसिपल को, स्कूल की अथॉरिटी को ये पता होना चाहिए कि यू आर ट्राइंग टू असेस द स्टूडेंट्स थ्रू पोर्टफोलियो, एंड ही शुड बी आल्सो अवेयर अबाउट ऑल द क्राइटेरिया व्हाट यू हैव फिक्स्ड अप, the rubrics what you are going to use, what you have demanded, what is your expectation and how the student has done. तो ये सारा चीज अवेयरनेस उनको होना चाहिए, पेरेंट्स को भी होना चाहिए. इट इज आल्सो गुड आइडिया टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट द पोर्टफोलियो असेसमेंट एंड अलाउ देम टू कमेंट ऑन द वर्क. और उनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं सो दैट दे कैन गिव देयर पर्सनल कमेंट which can be taken as a proof for more authentic work. Suppose the student will write, I have felt like this while doing this particular work. The parents may add their comments so that particular reflection will become more strengthened, वो ज़्यादा strong हो जाए. तो ये आप पेरेंट्स का भी फीडबैक उसमें डाल सकते हैं. Then development of the portfolio, support and encouragement are required by both teacher and student as this is a devote class time. लास्ट में जब आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से तैयार हो गया तो ये सारा चीज आप उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको एक साथ कंबाइन करना है, दैट इज द लास्ट स्टेज. आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो गया. सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट आर रिक्वायर्ड बाय बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. आपको टीचर्स का सपोर्ट का जरूरत है. डिवोट क्लास टाइम टू स्टूडेंट टीचर कॉन्फ्रेंसेस टू प्रैक्टिसिंग रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ. रिफ्लेक्शन कैसे लिखना है, बहुत बार जब आप लोग को ये स्कूल डायरी लिखने की बात आती है, मैंने बार बार आपको बताया कि स्कूल डायरी लिखने का मतलब ये नहीं कि हम 9 बजे स्कूल पहुंच गए हैं, 10 बजे मेरा फर्स्ट पीरियड था, 11 बजे सेकंड पीरियड था, उसमें मैंने ये पढ़ा दिया, उसमें उन्होंने टाइम, वो सब कोई जानता है. आपका डायरी पढ़ने की जरूरत नहीं है. वो स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ लिया जाएगा कि आपने कितने बजे आए स्कूल और क्या क्या किए हैं, वो भी बता देंगे. आप एक स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि एक टीचर क्या क्या किया. तो वो डायरी में लिखने की क्या जरूरत है. फिर डायरी में लिखने का मतलब है कि वेयर यू आर रिफ्लेक्टिंग योरसेल्फ. सपोज यू विल से दैट आई रीच्ड at 9:30 to the school and I felt very comfortable because in the last day I came at 10 o'clock. 10 बजे मैं आया था और मेरे को पछतावा फील हुआ था कि मैं लेट हो गया हूँ और मेरे को क्लास के लिए कंफर्टेबल समय नहीं मिला रेस्ट लेने का. तो आज मैं कि 9:30 बजे आया तो मेरे को थोड़ा सा रेस्ट महसूस हुआ और आज मैं पूरी तरह से एनकरेज फील हुआ, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड लग रहा है मेरे को कि मैं फर्स्ट क्लास ले सकूंगा. तो ये जो आप लिखे हैं ये कोई नहीं जानता है. दैट इज द रिफ्लेक्शन. सो रिफ्लेक्शन आपका लिखना क्या है वो आप समझिए, और टाइम टेबल और सीक्वेंस लिख देना वो क्या चीज, दोनों में अंतर है. यू शुड आइडेंटिफाई कि रिफ्लेक्शन क्या होता है जो सिर्फ आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप फील करते हैं और कोई नहीं बता सकेगा उसको. सो दैट वन यू हैव टू प्रैक्टिस एंड दैट स्किल यू शुड डेवलप. गिव गाइडिंग फीडबैक देते रहिए. टीचर्स एज ए टीचर आप उनको बताते रहिए. ओनरशिप, स्टूडेंट्स के अंदर वो ओनरशिप जिम्मेवारी होनी चाहिए. तो पोर्टफोलियो में वो जो भी कर रहा है उसको लेके उसको अच्छा बोला जाएगा, उसको खराब बोला जाएगा, उसको फीडबैक दिया जाएगा. ये सब जो है वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी. ये ओनरशिप लेने के लिए वो तैयार रहना चाहिए. So this is the final whatever I told you about portfolio that I have just tried to summarize what is assessment portfolio. Now I will like to ask a few of the students that I have given you certain tasks to go and visit certain website mahara.org. mahara.org के ऊपर जाने के लिए मैंने बोला था. आर कैंपस के ऊपर मैंने आपको बोला था थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए. तो आप लोगों में से कितने लोगों ने किया उस पर कुछ काम, और कुछ आपने उसको ये करके लाए हैं, तो वो मेरे को बताइए जिसने भी किया हो.
बोलिए, आप लोग में से कोई, आप लोग में से कोई उसको, उस वेबसाइट को विजिट किया है? सर विजिट किए थे सर, दोनों को विजिट किए थे सर। यस एंड सर, लेकिन मालूम नहीं एक हो कितना है। एक बार में एक लोग बोलिए, जो बोल रहा है उसको बोल लेंगे। हाँ एलिजाबेथ बोलिए। बोल रहे हैं सर। दोनों को विजिट किए थे एंड उसमें दिखा रहा था सर, एक्चुअली करके नहीं देखे थे बट उसका फीचर्स देखे थे कि वो सब आर्काइव करके रखता है और उसको सेपरेट करके रखता है कि आपके वर्क को कि क्या पहले होना चाहिए, क्या उसके बाद होना चाहिए, क्या आपके अचीवमेंट्स है, उसको एक एक कैटेगरी में डाल के रखता है। एंड दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में अलाउ था कि बाकी लोग भी आपके साथ ज्वाइन करें आपके पोर्टफोलियो को बनाने में, एंड एक में वो ऑप्शन नहीं था, आर कैंपस में वो ऑप्शन नहीं था। हम्म, और कोई बताइए, और किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया? हम्म, और किसी ने नहीं किया इसको एक्सप्लोर? सर महारा में विजिट किए थे पर उतना एक्सप्लोर नहीं किए। Okay, no problem. See, so today I am just giving you one task, that you try to go and visit to our campus or Mahara. I am giving the option open to you, that you go there and just try to develop a portfolio for yourself. Okay, and that portfolio should be starting from your MAD onwards. Okay, you can give your basic details, or means just you can put your CV, what you have done beforehand, means up to before joining this course, what you have, what your achievement, that you form, that you keep in a CV form. CV form में आप उसको रख दीजिए, बायोडाटा फॉर्म में रख दीजिए, वो आपका एक बायोडाटा रहने दीजिए वहाँ। वो आपका पहले का अचीवमेंट, वो उससे पता चल जाएगा, एक पेज दो पेज से, वो रहने दीजिए। बट आफ्टर दैट वन, after this after you join AMED, then you develop a portfolio where you keep all your achievement, what you have done from that, starting from first semester, then up to now, आज तक आपने क्या क्या किया है। Try to put different aspects. You can put the samples of different assignments. You can put the samples of teachers' feedback. You can put samples of your uh, examination marks. You can put samples of your cultural program participation. You can put samples of any other activities apart from the college activity that you have participated. कोई सोशल वर्क आपने किया, वो आप डालिए। घर में आपने कुछ एक नया कुछ बनाया है, कुछ क्रिएट किया है, वो आप डाल सकते हैं। आप कुछ नया चीज़ सीखे हैं, अपने हॉबी को आपने परसुएट किया है, कुछ सीखे हैं, उसको डालिए। एंड ट्राई टू मेक इट प्रेजेंटेबल, आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। वंस यू विल प्रैक्टिस, देन ओनली इन फ्यूचर यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स टू गो फॉर एंड प्रिपेयर ए पोर्टफोलियो। तभी वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते। यू कैन क्रिएट, सी उसमें जाइए, ऑप्शन आपको मिलेगा, यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स देयर। उस फोल्डर्स में आप उनका अलग अलग नाम देख दीजिए, स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, एंड यू कैन अपलोड डिफरेंट थिंग्स। यू कैन चेंज द थीम ऑफ योर दिस वन पेजेस। आप अपने पेजेस का थीम चेंज कर सकते हैं, उसको अपना एक अलग लुक दे सकते हैं, और उसको बनाइए आप। एंड आई विल ट्राई टू सी दैट वन। आई एम नॉट गिविंग एनी, मेरा तो ये आदत ही नहीं है कि मैं आपको कोई डेडलाइन दूँ। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कब, जैसे आपको लगता है, जैसे मैं आज पहली बार जब बोला था
तो आपको लगा होगा कि मैं भूल जाऊंगा, फिर बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैंने ये बात पूछा तो फिर मैं किसी दिन आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया है. So I hope that you will explore that one and you try to develop the portfolio. अगर क्लास ये सारे जो करिकुलम का खत्म है, ये जो भी आपका सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद मैं क्लास लेता हूँ, तो एक बार आपको मैं उसको प्रेजेंट करके उसको बना के भी दिखाऊंगा. नाउ जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ वेब क्वेस्ट, ये नहीं कि आप बैठे रहिए कि हम एक दिन पोर्टफोलियो, मैंने इसका थ्योरी सारा समझा दिया आपको, वेबसाइट भी बता दिया हूँ. वेब क्वेस्ट में तो मैंने पहले आपको बोला था कि बनाइए, आप धीरे चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, फिर मैंने पढ़ा भी दिया, उसके बाद आप लोगों ने बनाया. इसमें मैंने पढ़ा दिया हूँ. आप नाउ यू गो एंड डेवलप द पोर्टफोलियो. स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू से initial things, what you feel you can develop. You cannot develop it in one day. मैंने बोला था इसमें 4 स्टेज है. कलेक्शन है, देन रिफ्लेक्शन है, देन रिडक्शन है, एंड देन यू हैव टू लास्ट वन वाज प्रेजेंटेशन और upload whatever was there. So you have to think first, you collect all the ideas what you have done from starting from when you joined एमएड कोर्स. एमएड कोर्स जब से ज्वाइन किए हैं उस समय से अभी तक आपने क्या किया है उसको आप देखिए, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपका अचीवमेंट क्या रहा है. सो दैट वन यू ट्राई टू डू, और वो आप जब कर सकेंगे तभी आप एक्चुअल में बोला जा सकता है कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या है वो आप समझे हैं. until unless you practice that one, you will not able to enjoy that particular thing. आप उसको enjoy नहीं कर सकेंगे. तो इसलिए आप उसको पहले समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए. आई हैव गिवन यू द प्लेटफॉर्म्स. आपको प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया कि कहाँ आप उसको देख सकते हैं, तो कहाँ से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट हाउ यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर द थिंग्स. You are able to see the slides. Now you must be seeing that one. तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल सब दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं. साइंस का अगर पोर्टफोलियो बनाना तो उसमें क्या क्या हो सकता है. चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रोजेक्ट सैंपल्स, पोस्टर्स, लैब रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट, टेस्ट रिजल्ट, स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन, तो ये सारा कुछ हो सकता है साइंस के प्रोजेक्ट में, साइंस के पोर्टफोलियो में. मैथ्स में भी उसी तरह से सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व, ये एक प्रॉब्लम को आपने यूनिक वे में सॉल्व किया है उसको आप डाल सकते हैं. चार्ट है, ग्राफ है, ये सारे कुछ डाल सकते हैं. इंग्लिश में भी आप पोएम्स, एसे, लेटर्स, वोकैबुलरी अचीवमेंट्स, टेस्ट, रीडिंग लॉग, ये सारे कुछ को आप अपलोड कर सकते हैं. स्टूडेंट रिफ्लेक्शन, तो ये आप सारा कुछ को आपको इंग्लिश पोर्टफोलियो, अगर इंग्लिश में असेसमेंट के लिए पोर्टफोलियो यूज करना है तो उसमें ये सब चीज़ डाला जा सकता है. सो पोर्टफोलियो एंट्री करते समय क्या क्या बातों का ध्यान दें. पर्पस ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आपने किस लिए बनाया है वो ध्यान रखिए. प्रोसेस पोर्टफोलियो है, शोकेस पोर्टफोलियो है, किस सब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइम पीरियड दैट इट शुड स्पैन, कितने दिन के में ये पोर्टफोलियो आपको बनाना है, कितने दिन के लिए, पूरा सेशन के लिए बनाना है, प्रोसेस पोर्टफोलियो बनाना है, या फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए आपको अपना बेस्ट वर्क वहाँ दिखाना है. तो टाइम पीरियड देखना है. नेम पीपल हु विल हैव एक्सेस टू इट, आपको ये देखना होगा किसको किसको उसका एक्सेस मालूम होगा. टीचर्स देखेगा उसमें या और कोई देखेगा या इस तरह से. लिस्ट देन इफ एप्लीकेबल व्हाट क्राइटेरिया विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करने के लिए क्या क्या चीज़ों को यूज़ किया जाएगा. इंश्योर दैट यू अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्लेक्सिबिलिटी को आप अलाउ कीजिए. इंश्योर दैट स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज टू कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियोज. डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज, वेब लिंक, पेजेस, इसका इनका पास एक्सेस होना चाहिए.
ग्राउंड रूल्स फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली और कोलैबोरेटिवली, कैसे वो साथ में मिलकर पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में आप ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोर्टफोलियो हम बनाने के लिए बोले, जैसे कि एक स्कूल में साइंस क्लब है, तो इन दैट साइंस क्लब सर्टेन मेंबर्स आर देयर, 4-5 मेंबर उस क्लब के मेंबर हैं, तो उनको एक असाइनमेंट दे दिया जाए कि आपका ये पूरा 6 महीना में साइंस क्लब ने क्या क्या किया है उसको एक पोर्टफोलियो में बनाइए। तो यहाँ कोलैबोरेटिव वर्क का रिक्वायरमेंट है, साथ में मिलके ही वो कर सकते हैं। गाइडेंस ऑन फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, किस तरह का वो लुक कैसा रहेगा वो देखना है। हाउ पोर्टफोलियोज फिट इनटू देयर ग्रेड्स, तो ये आपको जो ग्रेड जो भी आपको मिलेगा वो क्राइटेरिया के साथ उसको भी कंपेयर करके देखना है। ये शायद स्लाइड थोड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, कलर इसका चेंज नहीं हो सका है। Who decides what to include and what not to include? Just I am just giving what is there in the slide. The student choice is the primary determinant of entries in the, स्टूडेंट्स डिसाइड करना चाहिए, स्टूडेंट्स के हाथ में कमांड होना चाहिए कि पोर्टफोलियो में क्या होगा क्या नहीं होगा। टीचर कैन हेल्प, स्टूडेंट एंड टीचर में भी आस्क टू एक्सप्लेन, पूछा जा सकता है आपको कि आपने ये चीज़ जो अपलोड किया है तो वो क्यों आपने डाला है, उसके पीछे क्या सोच के आपने डाला। टीचर में मीट विथ स्टूडेंट्स रेगुलेट, रिफ्लेक्शंस के लिए क्या रिफ्लेक्ट वो करेगा या क्या रिफ्लेक्शन करना चाहिए उसके बारे में भी टीचर उसको गाइड दे सकता है। Include works is just I am trying to summarize this one. Start with early works or provide a basis for comparison of later work. Include a variety of works in each category. Include works that reflect the learning objectives. ठीक है, तो क्या उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। वर्क शुड बी कॉम्प्लेक्स टू एनेबल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस को आपको देखना पड़ेगा कि आप एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, आपका काम बहुत छोटा सा आपने दिखा दिया, रिफ्लेक्शन में बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप काम के अनुसार ही आपका रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। एंट्री शुड बी सिलेक्टेड बाय स्टूडेंट बिकॉज इन सेलेक्टिंग स्टूडेंट हैज टू अप्लाई हायर लेवल, तो ये मैं ऑलरेडी बताया आपको कि स्टूडेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि क्या पोर्टफोलियो में रखना है। पोर्टफोलियो क्यों यूज़ करें, क्योंकि एक ऑथेंटिक वे ऑफ इवैल्यूएशन है, स्टूडेंट का लर्निंग प्रोग्रेस को देख सकता है, डायग्नाइज कर सकता है उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को। पोर्टफोलियोज कैन हेल्प टीचर्स मॉनिटर एंड इवैल्यूएट लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम। Portfolios help teachers determine whether students can apply what they have learned to new problems and different subject areas. Portfolios can encourage students to take more ownership and responsibility. ज़्यादा ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इंकरेज कर सकता है। पोर्टफोलियो कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन के में भी हेल्प कर सकता है। तो दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स दैट ए टीचर शुड thinking of when he is trying to implement portfolio for assessment. Now see some other uses of portfolio, just I will try to chalk out. It can be used for community service. कम्युनिटी सर्विस के लिए आप इसका क्या क्या इनोवेटिव यूज हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज हो सकता है बिकॉज मैं ऑलरेडी बोला था कि आप एक विलेज में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप टीचर से वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं, उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। आप वहाँ साफ सफाई करवा रहे हैं, उसका एक आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो वहाँ आप स्टूडेंट जो वहाँ के बच्चे हैं उनको आप हेल्दी हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं। दैट इज़ आल्सो वन वे ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो कम्युनिटी सर्विस के लिए आपका पोर्टफोलियो का यूज़ हो सकता है, ठीक है। Whatever best thing they have done in serving the community, that also can be used. You can prepare videos on that, you can prepare documentary movies on that, और उसको आप फिर यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए कि यू हैव डन सर्टेन कम्युनिटी सर्विस। इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट, ये देखिए ये पोर्टफोलियो में एक खासियत ये भी है कि 2-4 सब्जेक्ट मिल के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। साइंस मैथ्स can be clubbed together and then interdisciplinary aspects can be worked out. An interdisciplinary unit of study that includes many different content areas is often difficult to evaluate using traditional methods of assessment. ट्रेडिशनल मेथड में मैथ को इवेलुएट करना है तो मैथ का एग्जाम होगा, मैथ्स का प्रॉब्लम बनेगा, साइंस का एग्जाम होगा, साइंस का एक डेट होगा, साइंस का क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी टोटल उसका
साइंटिफिक एटीट्यूड एंड मैथमेटिकल एटीट्यूड कितना डेवलप है, उसको अगर आपको मेजर करना है तो ये पोर्टफोलियो जो है इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट की तरह काम कर सकता है। एक ऐसा एक्ट आप दिखा सकते हैं, एक ऐसा वर्क दे सकते हैं कि उस वर्क को देख के आप बोल सकते हैं कि इसको साइंस पता है और इसको इसके साथ साथ इसका मैथ्स भी पता है, इसी के कारण वो उसको कर सक रहा है। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ वे ऑफ इनोवेटिव यूज ऑफ दिस वन। Portfolios. Subject areas portfolios. Student learning in some areas is greatly enhanced through the use of portfolios to document learning. Portfolios are well established in writing, but there are many other excellent applications of the technique. A foreign language portfolio could have cultural artifacts relating to religion, art. तो आप एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट यू कैन गेट इफ यू आर यूजिंग पोर्टफोलियो। बहुत तरह का इनोवेटिव मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट, एक्सपर्ट्स को इनवाइट करके उनके साथ बात करना, उसके साथ आप अपना क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, उसका आंसर आपको मिल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट, उसका स्नैपशॉट, ये सारे चीज़ भी आप पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट एरिया में डेवलपमेंट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज एडमिशन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि अगर आपको किसी +2 के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, दैट पोर्टफोलियो कैन बी शोकेस टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन वाइल गोइंग फॉर एडमिशन। आप एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ अपना पोर्टफोलियो शोकेस कीजिए, अपना बेस्ट चीज़ बताइए कि आपने क्या क्या किया है, आपका टैलेंट क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, एंड देन इट कैन बी यूज फॉर गेटिंग एडमिशन। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी should not talk, I have already talked so many things about this one। एम्प्लॉयमेंट में कैसे यूज हो सकता है, आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो हैं वो आपका पोर्टफोलियो देख के आपको असेस कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे उनके लिए हो सकते हैं, उनके जॉब में आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्किल एरिया पोर्टफोलियोज, आपका किसी एक पर्टिकुलर स्किल एरिया में आपका डेवलपमेंट करना है, ठीक है, आपका कोई स्किल को डेवलप करना है, वहाँ पे भी आप पोर्टफोलियोज यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है और आप कहाँ हैं, धीरे धीरे आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो दैट वन कैन बी यूज्ड टू डेवलप ए पोर्टफोलियो। नाउ देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज तो आप जितना मैंने डिस्कशन किया, बहुत सारा प्रोज आपको मिल गया होगा, जहां आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिक वे ऑफ इवैल्यूएशन है, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को अपने आप को शोकेस करने के लिए। ग्रेट लेवल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर यहाँ मिलता है, ऑलवेज कोलैबोरेशन का आपको मौका देता है। तो ये आपका प्रोज है। पुटिंग टुगेदर ए पोर्टफोलियो ऑफन हाईलाइट्स स्टूडेंट मीनिंगफुल एप्लीकेशंस ऑफ लेसन्स। वो कितना भी लर्निंग को किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आप पोर्टफोलियो से देख सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या करते हैं, अपने आप को गोल सेट करके उसको कैसे अचीव करते हैं, ये सारा चीज आपका प्रोज में जाएगा ऑफ यूजिंग पोर्टफोलियो एज एन असेसमेंट टूल। स्टूडेंट पोर्टफोलियो हैव बीन ऑफर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये सब बहुत अच्छा मेथड है, मैंने बताया हूँ कि सारा तरह का इवैल्यूएशन को आप इसके अंदर क्लब कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन प्रोज developing and assessing portfolio. Now coming to the cons, this heading has to be changed, not change that one. Cons इसके demerits क्या है? तो demerits you can see that it is time taking होता है ना। It is time taking and it is very difficult. It takes इसमें बहुत स्किल की जरूरत है, टीचर को हैज टू बी टू मच स्किल टू यूज दिस पर्टिकुलर वे ऑफ असेसमेंट। सब्जेक्टिव भी हो जाता है कभी कभी, आप समझ सकते हैं सब्जेक्टिव कैसे है, इसलिए मैंने बोला कि इसको इवैल्यूएशन के लिए रूब्रिक बनाना पड़ेगा। और वो रूब्रिक बनाने में आपको कितने समय लगता है, कितना टेक्निकल वे में आपको, जब तक आप स्किल नहीं होंगे तब तक आप पोर्टफोलियो को यूज नहीं कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। तो दैट वन शुड बी देयर। रूब्रिक आपको बनाना एक स्किल टास्क है, और इसके कारण अगर आपने उसमें प्रॉपर वे में अपने एस्पेक्ट्स को, क्राइटेरिया सबको नहीं डेवलप किया है, उस क्राइटेरिया को शो करने वाले स्पेसिफिक फैक्टर्स आपने नहीं लिखे हुए हैं, तो आपका ये सब्जेक्टिव हो सकता है। सो दैट इज आल्सो
Putting a portfolio together takes a lot of interaction from the student and the teacher. बहुत समय जाता है इसमें, सब्जेक्टिव ग्रेडिंग हो सकता है. So these are certain cons, but still you can see that it is one of the best way of evaluation. कैसे portfolio का evaluation होता है? This is the last slide, I think. You have to use rubrics for evaluating portfolio. You can use analytical rubrics. एनालिटिकल रूब्रिक आप कब यूज़ करें? जब आपका डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो हो. आप जानते हैं डेवलपमेंट पोर्टफोलियो और प्रोसेस पोर्टफोलियो जब होगा तो एनालिटिकल रूब्रिक यूज़ करें. जब आप शोकेस पोर्टफोलियो आपके पास है तो होलिस्टिक रूब्रिक यूज़ करें. और जब आपके पास इवैल्यूएशन वाला पोर्टफोलियो हो या असेसमेंट पोर्टफोलियो हो, देयर यू कैन यूज आइदर एनालिटिकल और होलिस्टिक रूब्रिक, दोनों में से कोई. आप अपना रूब्रिक जो है हमेशा स्टूडेंट्स को पहले शेयर करें बिफोर गिविंग द टास्क. अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट टू देयर पोर्टफोलियो यूजिंग द रूब्रिक. रूब्रिक के साथ अपने वर्क को कंपेयर कर दें. आप जब जैसे ये रूब्रिक आप पहले दे देते हैं तो अपने वर्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना वहाँ तक पहुँचे हैं, जो क्राइटेरिया है. बायसनेस को आपको चेक करने के लिए आपको देखना होगा. एग्जाम्पल, रेट पोर्टफोलियो विद अनदर टीचर. यू कैन आस्क अदर टीचर आल्सो टू रेट द पर्टिकुलर असाइनमेंट्स और पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. रेट पोर्टफोलियो विदाउट लुकिंग एट स्टूडेंट नेम. नाम उनका नहीं देख के आप उनका पोर्टफोलियो का असेसमेंट कीजिए. दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ अवॉइडिंग बायसनेस. व्हेन मेकिंग मेजर डिसीजंस बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन, इंश्योर दैट यू यूज मोर देन वन रेटर. तो अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आपको मोर देन वन रेटर को यूज करना है. ये मैंने कुछ आपको बताया था. इज नॉट ए मेस ऑफ वर्क, टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्प. ये काम करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. तो इसलिए मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी आपका हेल्प कर सकता है और उसमें आप ई पोर्टफोलियोज, महारा, आर कैंपस, पोर्टफोलियो बॉक्स जैसे वेबसाइट या प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं. आई टोल्ड यू दैट यू गो टू महारा, गो टू आर कैंपस, डेवलप योर पोर्टफोलियो. आप पोर्टफोलियो बनाइए. वन मोर थिंग, यू कैन सी दैट पोर्टफोलियो के इवैल्यूएशन के लिए रूब्रिक वो भी अवेलेबल आपको मिलेगा आर कैंपस पे. सो दैट आल्सो यू कैन एक्सप्लोर. तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो के बारे में ये सारा कुछ था. होप यू हैव अंडरस्टूड मोर देन